ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت کئی مستحقین میں ایل جی منوج سنہا نے کیے رہائشی مکانات کے اسناد تقسیم۔ وزیر اعظم کے مطابق جیم پلیٹ فارم ملک میں سرکاری خرید کا ایک آن لائن وسیلہ۔ صدر جمہوریہ نے کھیل کود میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں ایوارڈز کی تقسیم۔ اور سی بی آئی کی طرف سے جموں کشمیر کے 14 مقامات پر چھاپہ ماری، کچھ اہم دستاویزات ضبط۔ خبری تفصیل سے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کے سول سیکریٹریٹ میں تقریب پر پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت کئی مستحقین میں رہائشی مکانات کے اسناد تقسیم کیے۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے دیہی ترقیاتی محکمے کے کام کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مقررہ مدت کے اندر ایسے تمام لوگوں کے لیے مکانات کی تعمیر کا کام مکمل کیا جو اب تک اسکیم کے دائرے میں نہیں لائے گئے تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم کی ان کوششوں کا بھی حوالہ دیا جن کے تحت ملک بھر میں بے گھر لوگوں کے لیے رہائشی سہولیات فراہم کرنے کا ایک خواب دیکھا گیا تھا اور آہستہ آہستہ اس خواب کی تعبیر پوری ہو رہی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے عوامی شکایات اور مسائل کو مقررہ مدت کے اندر حل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان اقدامات سے عوام کا انتظامیہ کے تئیں اعتبار مزید مضبوط ہوتا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ان خیالات کا اظہار آج جموں میں عوامی وفود کے ساتھ ملاقات پروگرام کے دوران بات کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے تمام افسران سے تاکید کی ہے کہ وہ عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی طرف دھیان دیں، کیونکہ عوام ہمیشہ اس امید میں رہتے ہیں کہ ان کے مسائل سنے جائیں گے اور انتظامیہ جلد از جلد ان مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایل جی ملاقات اب جموں کشمیر میں عوام دوست پلیٹ فارم کے طور ابھر رہا ہے جس کے ذریعے ان کی مشکلات اور مسائل کا مقررہ مدت کے اندر حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام کو منعقد کرنے کا جو مقصد رکھا گیا تھا وہ اب تک کی ملاقاتوں کے دوران حاصل ہو رہا ہے اور بڑے موزوں ماحول میں لوگوں کی شرکت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سرکار کے ای مارکیٹ پلیس پلیٹ فارم کے ذریعے مالی سال 2022-23 کے لیے کل تک 1 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کے سامان کا کاروبار ہوا۔ جیم پلیٹ فارم ملک میں سرکاری خرید کا ایک آن لائن وسیلہ ہے جس کا آغاز اگست 2016 میں ہوا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسے ایک شاندار کارنامہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جیم بھارت کے صنعتی اور کاروباری جوش و جذبے اور شفافیت کو بڑھانے کے تعلق سے ایک بڑی تبدیلی کا اہم وسیلہ ہے۔ نریندر مودی نے اس پلیٹ فارم پر اپنی اشیاء اور سامان پیش کرنے والے سبھی لوگوں کی ستائش کی۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ ہمارا ڈیزرٹ آ گیا پر ہماری چیمپئن نہیں آئی اب تک۔ بل بھرنے کے پہلے تو آئے گی نا۔ سو گرل کیا ہو رہا ہے؟ بل ہو رہا ہے۔ چل اپنا کارڈ دے۔ پن دے۔ RBI کہتا ہے اپنا پن، OTP، CVV یا انٹرنیٹ بینکنگ پاسورڈ کسی کو نہ دے۔ آن لائن بینکنگ صرف اپنے ہی کمپیوٹر، موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کرے۔ ہاں، یہ کھانے کی چیمپئن شپ تھی کیا؟ RBI کہتا ہے جانکار بنیں، چوکنے رہیں۔ سی بی آئی نے آج جموں کشمیر کے جموں اور سانبا اضلاع میں 14 مقامات پر چھاپہ ماری کی۔ یہ چھاپہ ماری جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ کی جانب سے لیے گئے محکمہ فائنانس میں اکاؤنٹس اسسٹنٹس اسامیوں کے امتحانات میں مبینہ طور پر گھپلا اور رشوت ستانی کی شکایتیں موصول ہونے کے بعد کی جا رہی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق جموں اور سانبا اضلاع میں کی گئی اس چھاپہ ماری کے دوران اب تک سامنے آئے ملزمان کے ٹھکانوں کی تلاشی لی گئی جہاں سے کئی دستاویزات اور دیگر مواد برآمد ہونے کی اطلاع ہے۔ اس سے پہلے رواں مہینے کے اوائل میں سی بی آئی نے سب انسپکٹر اسامیوں میں گھوٹالے میں ملوث کئی مشتبہ افراد کے علاوہ پولیس افسراں اور CRPF جوان کو بھی گرفتار کیا ہے۔ حفاظت عملے نے آج پونچھ ضلع کے نبھانا سرنکوٹ علاقے میں ایک ہائیڈ آؤٹ کو تشدد بام کیا ہے۔ دفاعی ترجمان کے مطابق علاقے میں اسلحہ اور گولہ بارود موجود ہونے کی اطلاع موصول ہوئی جس کے بعد فوج اور پولیس نے سرنکوٹ پونچھ کے اوپری علاقوں میں تلاشی کارروائی شروع کی جس دوران کافی مقدار میں گولی بارود برآمد کیا گیا۔ تلاشی کارروائی آخری خبریں آنے تک جاری تھی۔ BSF نے سال 2022 کے دوران جموں خطے میں سرحد کے اس پار سے ڈرون اور ٹنلوں کے ذریعے کی گئی کئی مذموم کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ ان باتوں کا اظہار IG BSF جموں فرنٹیئر DK بورا نے BSF کے 58ویں یوم تاسیس کے سلسلے میں منعقد کی گئی ایک تقریب کے دوران ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہی۔ IG BSF نے بتایا کہ جموں فرنٹیئر میں پاکستان کے ساتھ 192 کلومیٹر لمبی سرحد پر نہ صرف ڈرون حملوں کو ناکام بنایا گیا بلکہ اسلحہ کو بھی ضبط کر کے حملوں کی بڑی کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا۔
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने खेलों के 2022 कौमी अवार्ड्स और 2021 के कौमी एडवेंचर अवार्ड्स अता किए। सदर मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा एक तकरीब में ये अवार्ड्स अता किए। खेलकूद से मुतल्लिक कौमी अवार्ड्स खेलों में महारत को तस्लीम करने और उनका सिला देने के लिए हर साल अता किए जाते हैं। खेलकूद में गैर मामूली कारकर्दगी पर इस साल के अर्जुन अवार्ड्स खेलों से वाबस्ता 25 अफराद को दिए गए। कल 1 दिसंबर को भारत के बाज़ाब्ता तौर पर G20 की सदारत संभालने के मौके पर मुल्क भर की कम से कम 100 इमारतों को G20 लोगो से रोशन किया जाएगा। इस लोगो में कुर्रे अर्ज को कमल के फूल के साथ दिखाया गया है, जो कि भारत का कौमी फूल है और चैलेंजों के दरमियान तरक्की की अक्कासी करता है। गुजरात में कल पहले मरहले की पोलिंग हो रही है। इसके लिए 89 सीटों पर 780 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। जनूबी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में इस मरहले के तहत इंतखाबात हो रहे हैं। पोलिंग का सिलसिला सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे इख्तिताम पजीर होगा। इस मरहले में तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख वोटर्स कल अपनी हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। खबरों के मुताबिक पोलिंग मुनाकिद करने वाले अहलकार साजो सामान के साथ वोटिंग मराकज पर पहुंच चुके हैं। रियासत में पुरअमन पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से माई टाउन माई प्राइड का जन अभियान मरहला दोम रवा माह की 28 तारीख से शुरू हुआ, जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से 35 वार्डों में अपने अफसरान को तैनात किया गया है, जो इस मुहिम के दौरान लोगों के मसाइल सुनेंगे और उनका हल तरजीही बुनियादों पर निकालने की कोशिश भी करेंगे। इस सिलसिले में SMC के ज्वाइंट कमिश्नर अब्दुल कासिम ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो अपने मसाइल के हल के लिए इन वार्डों में हाजिर हो जाएं। इस वार्डों में ये प्रोसेस स्टार्ट किया है श्रीनगर सिटी में। वहाँ पे हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने सर्विसेज देते हैं लोगों के लिए, उनको वहाँ पे रखे, वो आए हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सर्विसेज है, वो वहाँ पे दे देंगे। हमारा यही इशू है कि हम लोगों से अपील करते हैं कि वो आए हमारे पास इन 35 वार्ड्स में जो हमारे विसिनिटी में है, एरियाज में है, वो वहाँ पे आ सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व करवा सकते हैं वहाँ पे। जैसे गोल्ड कार्ड्स है, जैसे आपके डिफरेंट जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट देते हैं या प्रोवाइड करते हैं, वो वहाँ पे आ सकते हैं और वहाँ पे अपने जो भी प्रॉब्लम्स है या एनालिस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, वो वहाँ पे आ सकते हैं और अपने काम निकाल सकते हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आज नट्टीपोरा में बैक टू टाउन के एक हिस्से के तौर जन अभियान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मौजूद CMO श्रीनगर ने कैंप से मुतालिक जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे कैंप श्रीनगर के हर एक हिस्से में होने चाहिए ताकि लोग गोल्डन सेहत कार्ड और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से शुरू की गई दीगर सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल कर सकें, जिनकी मदद से उन्हें हर वक्त फायदा मिले। उन्होंने कहा कि लोगों को गोल्डन कार्ड की जानकारी दी गई, जिसकी मदद से उन्हें अस्पतालों में मुफ्त इलाज और मुआवजा फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा जन औषधि केंद्रों से सस्ती अद्वियात भी हासिल करने की भी आगाही दी गई। कैंप में मौजूद दीगर ओहदेदारों ने कहा कि बैक टू टाउन जन अभियान के दौरान दस्तकारी से वाबस्ता लोगों ने भी यहां आकर अपने मसाइल का जिक्र किया और उन्हें भी मुतल्लिक अफसरान के पास इजाले के लिए भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि अब तक कैंप के बहुत मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। जिला इंतजामिया कुलगाम की तरफ से आज 11 ब्लॉकों में मेगा ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मौजूद अफसरान ने अवाम के कई मसाइल सुने और कई मामलात के मौके पर ही हल करने की यकीन दहानी कराई। दरियासना जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन ब्लॉक दिवस के मौके पर मुनाकिदा तमाम कैंपों पर वक्फे पर मौजूद रहे और अवामी मुतालबात और मसाइल के मौके पर ही हल करने के अहकाम भी सादिर किए। इसके अलावा उन्होंने लोगों को यकीन दहानी कराई कि उन मसाइल को भी फौरी तौर हल करने की कोशिश की जाएगी, जिन्हें आज के ब्लॉक दिवस में दर्ज किया गया और उन्हें हल करने में कुछ वक्त दरकार है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन हिना भट्ट ने आज कोकरनाग में तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के साथ एक मुलाकात की और उन्हें सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों की जानकारी दी और कहा कि इन स्कीमों से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश की जाए ताकि वो रोजगार कमाने के लायक बन सकें।
ग्रीन जम्मू कश्मीर बनाने के लिए महकमे सोशल फॉरेस्ट्री ने पूरी वादी कश्मीर में विंटर प्लांटेशन प्रोग्राम का एक बड़ा मरहला शुरू किया है। मुतल्लिका हुकाम के मुताबिक इस प्रोग्राम के दौरान 10 अजला में 15 लाख पौधे मार्च 2023 तक लगाने का हदफ रखा गया है और इस सिलसिले में चले ऐलान से पहले ही एक बड़ी मुहिम शुरू की गई ताकि मुकर्रर मुद्दत तक महकमे की तरफ से इस हदफ को हासिल किया जा सके जो उसने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए रखा है। महकमे के अहदेदारों ने कहा कि इस मुहिम में डीडीसी और बीडीसी मेंबरान के अलावा पंचों और सरपंचों की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। सोशल फॉरेस्ट्री महकमे की तरफ से इस प्रोग्राम का आज बाज़ाब्ता आगाज किया गया और रंगरेज के कैंटोनमेंट एरिया में लगभग 5000 पौधे लगाए गए जिसमें जैकले रेजिमेंट के फौजी जवानों समेत स्कूली बच्चों और कई अवामी नुमाइंदों और मुतल्लिका महकमे के अहदेदारों ने हिस्सा लिया। स्क्वास्ट कश्मीर की तरफ से आज शालीमार कैंपस में एग्रीकल्चर ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन तकरीब मुनाकिद की गई। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नजीर अहमद गनाई, डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी के अलावा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर शोबों से वाबस्ता प्रोफेसर साहिबान मौजूद थे। ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन का इफ्तिताह करते हुए वाइस चांसलर ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी की मदद से न सिर्फ इक्तिसादी तरक्की मुमकिन होगी बल्कि माहौलियाती आलूदगी पर भी काफी हद तक काबू पाकर नौजवानों को शोबे की तरफ रागिब करने में काफी कामयाबी हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी वक्त, पैसा और ताकत बचाने में भी अहम किरदार अदा करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हल्का इंतखाब जड़ी बल में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अवाम की खुशहाली के लिए हमेशा कुर्बानियां पेश की हैं और आज भी अवामी मसाइल को हल करने की गर्ज से अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुई है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब भी मौका मिला तो उसने यहाँ की अवाम को दरपेश सख्त तरीन चैलेंजों और मुश्किलात से बाहर निकाला और पार्टी को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी अवामी मुश्किलात का इजाला करने में कामयाबी हासिल की जाएगी। बीजेपी की जानिब से आज गुलगाम कुपवाड़ा में वर्करों का एक कन्वेंशन मुनाकिद किया गया। कन्वेंशन में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने खिताब करते हुए पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो बुनियादी सतह पर पार्टी की मजबूती के लिए काम करें और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत बनाने में अपना ताउन पेश करें। टाउन हॉल कुंजर में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की जानिब से आज एक कन्वेंशन मुनाकिद किया गया। कन्वेंशन में पार्टी के सीनियर लीडर ताज मोहिउद्दीन और दीगर लीडरान ने शिरकत की। ताज मोहिउद्दीन ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासत में गुलाम नबी आजाद की वाहिद शख्सियत आज भी याद की जा रही है जिन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना अहम रोल निभाया। लीडरान ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को मजबूत बनाने और आने वाले इंतखाबात में इस पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक रोजा कन्वेंशन आज पार्टी सदर दफ्तर श्रीनगर में मुनाकिद किया गया। इस मौके पर पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कई नए कारकुनान का इस्तकबाल किया और कहा कि आने वाले दिनों में जब भी इंतखाबात का ऐलान होगा तो उन्हें मजबूती के साथ पार्टी का मौकिफ अवाम के सामने रखना होगा ताकि पार्टी एक वाज़ेह मैंडेट के साथ जम्मू कश्मीर की हुक्मरानी में एक अहम किरदार अदा कर सके। वादी के मौरूफ शायर और मुसन्निफ डॉक्टर गजनफर अली की तस्नीम करदा किताब द राइज का इजरा किया गया। इस सिलसिले में तकरीब श्रीनगर के टैगर हॉल में मुनक़िद की गई जहां मरकज से सकाफत, चरार शरीफ और अदबी मरकज कमराज के कई दानिश्वर शोरा मौजूद थे। मुकर्रिरीन ने डॉक्टर गजनफर अली की किताब का हवाला देते हुए कहा कि उनकी ये किताब शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह की सूफियाना कलाम पर मबनी है और इसकी बदौलत नौजवानों में उनके कलाम के तई मजीद जानकारी और दिलचस्पी पैदा होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है और साथ ही सुबह के वक्त धुंध इसी तरह से बरकरार रहेगी। महकमे ने मजीद बताया कि रात के दौरान मतला साफ रहने की वजह से कश्मीर और लद्दाख में दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे दर्ज किया जा रहा है। महकमे ने मजीद कहा कि श्रीनगर में कल रात का दर्जे हरारत -1.6 डिग्री सेल्सियस जबकि पहलगाम में -3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का एक बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।